एक झूठा रेप केस करती है। False complaint has been lodged. के बाद भी अगर एक दो केस एफआईआर और होते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुछ नहीं, कुछ प्रूफ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? Nothing but falsehood. यही तो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि पूरा फ्रेम किया गया है हमारे अक्यूज को। मेरा क्लाइंट उनसे मिलना नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती करके उससे मिलती थी और वहाँ पे उसको थ्रेट एक्सटेंड करती थी कि मैटर सेटल कर लो वरना जो 2-4 केस में और डलवा देंगे तुमको। आज आदिल को लेके आए थे, उन्होंने पुलिस कस्टडी के लिए प्रेयर किया और हमने जुडिशियल कस्टडी के लिए किया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है। पुलिस कस्टडी दिया गया था 4 दिन में, क्या मतलब कुछ प्रूफ मिला या कुछ नहीं, कुछ प्रूफ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? वो तो मैं शुरू से ही कोर्ट में सबमिशन कर रहा हूँ। जब केस ही झूठा है तो एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? लेकिन फिर भी उनकी जीत थी। 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली उनको, कुछ मिला नहीं। अल्टीमेटली ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ प्रोग्रेस नहीं था इन्वेस्टिगेशन में, ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी। सर मैसूर पुलिस वाले लेके गए हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा अभी आगे का? अभी लेके नहीं गए हैं, अभी उन्होंने अपना यहाँ पे एप्लीकेशन पुटअप किया हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट जब भी ऑर्डर पास करेंगे उसके बाद वो ऑर्थो रोड से उसको लेने जाएंगे। अभी तो फिलहाल आदिल को ऑर्थो रोड जेल लेके गए। सर मैसूर में आप देखने वाले आदिल खान का केस, तो क्या Yes. ये रहेगा आपका? Actually, the VV Police Station, Mysore, they have sought for protection warrant in respect of this particular case, and the magistrate of the Mysore actually was pleased to grant issued the protection warrant, and now the Mysore police have come here seeking they wanted to interrogate him and they sought for police custody. Now he will be taken to the Mysore concerned court, and afterwards they will move for the custody for application for police custody, and court will definitely we are going to object, because as far as the matter is concerned, Mysore matter is concerned, all it is all with maleficent intention, with a dishonest intention. A false complaint has been lodged, and it is if the complaint here as well as the Mysore complaint, if it is perused in its entirety, nothing but it is a bundle of lies, it is a falsehood, and we will properly agitate before a court of law, and we will proceed further. सर मैसूर पुलिस जो लेके गई है, क्या केस पे लेके गई है? वहाँ पे एक लड़की ने सो कॉल्ड रेप केस किया है और अंडर सेक्शन 376 बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, फॉल्स ग्राउंड्स हैं। सो ऑब्वियसली वो कंसीडर करेगा ऑनरेबल कोर्ट हमारी सबमिशन को, एंड विल सी टू इट। सर बेल का क्या प्रोसीजर होगा अभी इसके बाद, क्योंकि आपने बेल का भी एप्लीकेशन डाला? बेल एप्लीकेशन तो हमारी पहले से ही पेंडिंग थी। बीच में इन्होंने जो पुलिस कस्टडी का वो किया था उसकी वजह से बेल एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग था। अभी हम बेल एप्लीकेशन के लिए वो करेंगे, कल या परसों में हम लोग तुरंत मूव करेंगे अभी। Yes. जो आप उनके पास जो आरोप लगा है उसके रेट में आप क्या कहना चाहोगे? As far as Mysore case is concerned, see, actually that very complaint itself is a very actually the complainant she has stated that she has been raped, and first of all she has stated they were living together, the first of all, and for the last 5 years they were in relationship, and afterwards what she says he has raped her, and under the pretext of he will marry her. That was the contention. But the thing is, actually, I don't want to. When the matter is sub judice, I don't want to go to the very deep into it. But at the outset, I would like to comment upon that. Here, actually, the Honorable Apex Court as well as the High Courts, the various High Courts, there are judgments. Actually, whether the false promise to marry or the breach of marry, whether it amounts to whether the section 376 will attract, the rape will attract, the provision of ingredients of section 376 will attract. There is a very different aspect. But by looking to the complaint which has been lodged before the Vivipuram police station, it is a very what I can tell you that it is nothing but falsehood, and no ingredients of sections have been made out in the particular case. सर हमने अंदर देखा था कि राखी अजय से मिलने की कोशिश भी कर रही थी, और जो अभी ये जो मैसूर का केस है पहले नहीं था, अब भी आना सब यही तो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि पूरा फ्रेम किया गया है हमारे अक्यूज़ को, हमारे क्लाइंट को। यहाँ के केस में पहले 406 और दूसरे सेक्शन में एफआईआर थी। सारी चीज़ें जब क्लैरिफाई कर दी हमारे क्लाइंट ने स्टेटमेंट में, पुलिस स्टेटमेंट में,
उसके बाद जल्दबाजी में कंप्लेनेंट फिर से आती हैं पुलिस स्टेशन में और फिर से उन्होंने वो इम्प्रूव करती हैं अपना स्टेटमेंट। फिर से उसके बाद 2 सेक्शन और ऐड होते हैं उसमें। उसके कुछ ही दिनों बाद उनके इंस्टेंस पे उन्हीं की फ्रेंड मैसूर में एक झूठा रेप केस करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्लेनेंट ने पुलिस स्टेशन में, आप लोगों को पता होगा कि जब से वो पुलिस कस्टडी में गया है वो रोज़ पुलिस स्टेशन जाती थी। मेरा क्लाइंट उनसे मिलना नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती करके उससे मिलती थी और वहाँ पे उसको थ्रेट एक्सटेंड करती थी कि मैटर सेटल कर लो वरना जो 2-4 केस में और डलवा देंगे तुमको। तो अब ये सोच लीजिए कि इसके बाद भी अगर 1-2 केस FIR और होते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो फाइनली क्या कहना चाहोगे, ये पूरे जो केस आपने देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये एक लोगों के लिए ना एग्जांपल भी है। No, here actually we don't want to touch upon the very all the merit of the particular, because it's matters are sub judice. But one thing I wanted to share with you, both the complainants, whether it is a complainant before the Mumbai the Oshiwara police or the complainant before the VV-Puram police, they are pretty well. They are very matured. They know what is good, what is wrong, what is bad. So it is not proper on my part to comment upon that. What is those aspects? She's aged 30 years, and here she's also. You are aware about this. So they are pretty well. What is good, what is wrong. So I don't want to comment upon this. We'll properly agitate before a court of law. We have been properly instructed to proceed further. नहीं, कुछ नहीं, बस अब जितना बेस्ट कर सकते हैं और जितनी जल्दी हम आदिल को बाहर निकाल सकते हैं हमारी कोशिश रहेगी। बाकी आप लोगों की शुभकामनाएं।